Good morning to all of you. So today's topic is transistor configurations. We are going to discuss the different transistor configurations. We can connect a transistor in different ways in a particular circuit, and the way these different ways of connecting a transistor, bipolar junction transistor in a circuit, we call them as a transistor configurations. As you know that transistor is a three-terminal device. So it has three terminals. So this is collector here. This is base, and here it is emitter. So here it is an NPN transistor. So in a particular circuit, so we can connect this in a different ways. Suppose if I place this transistor in a particular circuit in this way, so assume that I am applying here input to the circuit. Here I am taking the output. So this is one of the way we can connect a transistor in a particular circuit. Now here you can observe one thing here. This it is here emitter terminal, here it is collector terminal, and here it is base. So here the base is common between both input side and well as the output side. So such configuration is called common base configuration. And then we have got another configuration as common emitter configuration. So this is collector here, this one is base, and this one is emitter. Now what I am going to do, I am applying the input across this base and emitter, and I am taking output across this collector and emitter. So again you will observe one thing here, emitter is the common between the input side and the output side. So we call such an configuration as common emitter configuration. In the same way, we have one more configuration, that is common collector configuration. So I can also connect in a circuit the transistor in this way also. So it is here collector, here it is emitter, and it is base here. So I'm applying the input across base and this collector. Okay, I'm taking across output across these two terminals. So here you can see that collector is common between the input side and the output side. So such a configuration is called common collector configuration. So this is the way we can. So here we are going to discuss these configurations one by one. Okay, so here, so this is a transistor configuration. So transistor has three different configurations. One is common base configuration, then second is common emitter configuration, and common collector configuration. Now let me take the one by one each configuration. So first I'm going to start the common base configuration. Again, the circuit diagram is keen here. You can see the base is the common between the this input side and the output side. So in this configuration, input is applied between emitter and base. You can say this is emitter terminal, this is base. So input, what we are going to say, some weak signal we are going to amplify, we have to apply on this input side, and amplified signal can be taken from the output side. So in this configuration, input is applied between emitter and base, and output is taken between collector and base. So here you can see the base is common between the input side and the output side.
So that is why we call this configuration as a common base configuration. नाउ इसके बाद आपको इसमें क्या करना है कि हर एक कॉन्फ़िगरेशन में पहले आप बताओगे भाई कॉन्फ़िगरेशन है क्या, कॉमन बेस किसको कहते हैं। सेकंड आपको हर एक जो 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कॉमन बेस, कॉमन इंटर, कॉमन कलेक्टर, तो हर एक में आपको क्या करना है कि देयर आर सर्टेन करंट रिलेशंस, ठीक है ना, फॉर द पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें यहाँ पे एक-एक करके एक्सप्लेन करने हैं। so we have to also give the current relations for each configurations, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो करंट रिलेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, so I have one diagram here, the structure of an NPN transistor. So you can see here it is a heavily doped, this one part portion of the semiconductor is n type, heavily doped. Then we have got a p type material, it is which is lightly doped, and then third one is the we have collector, this one origin here, so it is moderately doped, ठीक है। सो वी कैन से द ट्रांजिस्टर इज एन asymmetrical डिवाइस, ठीक है। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस, इवन दिस एक तो बेस जो है इसमें लाइटली डोप्ड है, इट इज आल्सो थिन, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले कि करंट रिलेशन जो आपको इसमें देनी है इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है, so as you know that before explaining it, you know that how you can form a say n type material. तो एन टाइप मटेरियल जो होता है, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है क्या है, एज यू नो दैट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर वी ऐड द इम्प्योरिटी एटम्स टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको कहते हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में है। जैसे सपोज आई हैव these the silicon atoms here, और वी नो also know that जो सिलिकॉन है उसकी जो वैलेंसी है, it has got 4 electrons, it is in its outermost shell. These are the 4 electrons associated with each silicon atom in that particular crystal, ठीक है। तो उसमें जो then there are certain bonds between these two. Now so this is a we call this type of semiconductor as an intrinsic semiconductor, ठीक है। तो विच इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म, इसमें कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड नहीं है। सपोज अगर अगर हम इसको ये जो सेमीकंडक्टर है, तो अगर सपोज हमें इसको एन टाइप बनाना है, तो एज यू नो दैट इसमें हमें वी हैव टू गो फॉर द डोपिंग, वी हैव टू ऐड द इम्प्योरिटी एटम्स टू दिस वन। तो अगर एन टाइप आपको बनाना है देन we add the impurities to this particular intrinsic semiconductor, जो उसमें impurity ऐड करते हैं। सपोज आई टेक ए फॉस्फोरस, ठीक है ना। तो अब सपोज यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक फॉस्फोरस एटम ले रहा हूँ, देन यू हैव गॉट these different silicon atoms, एंड यू नो दैट ये जो हमारा फॉस्फोरस की वैलेंसी जो है आउटर मोस्ट शेल जो, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा तो इसमें you can find here,
यहाँ पे आप देखोगे आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जबकि मैंने एक इसमें इम्प्योरिटी एटम ऐड किया है। तो दिस फॉस्फोरस एटम इज आल्सो कॉल्ड डोनर एटम भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे मैंने ऐड किया, सो देन दिस टाइप ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये जो सेमीकंडक्टर है we call this as an एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। इन द सेम वे, अब यूजुअली जो हम डोपिंग यूज करते हैं इसमें, तो अगर आपको क्या आपको लाइटली डोप्ड बनाना है सेमीकंडक्टर, हैवीली डोप्ड बनाना है, ठीक है ना, या आपको मॉडरेटली डोप्ड बनाना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सपोज इफ यू ऐड द इम्प्योरिटीज पर्टिकुलर इन द रेंज ऑफ 10 पावर 17 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आप इम्प्योरिटी अगर आप ऐड कर रहे हो, सपोज फॉस्फोरस इम्प्योरिटी आपको इस सेमीकंडक्टर में ऐड कर रहे हो, लेकिन 10 पावर 17 एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सो वी से इट इज हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। अब सेकंड है कि अगर आप फॉस्फोरस को, देन दिस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर बिकॉज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब दूसरा है कि अगर आप इसमें 10 पावर 16 एटम्स ऐड कर रहे हो पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वी से इट इज अ मॉडरेटली डोप्ड। तो थर्ड है कि अगर आप 10 पावर 15 एटम्स इसमें ऐड कर रहे हो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, देन वी से ये जो है इट इज अ लाइटली डोप्ड, ठीक है। तो और एक चीज आपको इसमें जो बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म में जो होता है सेमीकंडक्टर, इन द सेम वे ये तो हो गया। तो अब सो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। सो आप देखो यहाँ पे इफ यू ऐड 10 power 17 atoms per cubic centimeter, it means you have got 10 power 17 electrons available in that particular semiconductor. So we call such a semiconductor as an n-type semiconductor, ठीक है ना। So you have freely moving electrons there available. अब दूसरा है कि अगर आप ये जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसके बारे में और एक चीज है कि सपोज एट रूम टेम्परेचर देखा गया है कि इसमें लगभग 10 पावर ऑफ 10, इसमें क्या होता है कि सपोज ड्यू टू एट रूम टेम्परेचर बॉन्ड जो है ब्रेक होते हैं। अब अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है ना, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो और इट क्रिएट्स वन होल हियर, ठीक है। तो अगर इन द सेम अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है ड्यू टू टेम्परेचर, इट लीव्स इट लोकेशन, देन इट यहाँ पे ये छोड़ देता है एक होल को, होल हैज गॉट अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये देखा गया रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 पावर ऑफ 10 these electrons or we can say holes are present in a particular semiconductor at room temperature. So 10 power 10 I can say electrons or holes are present in a particular semiconductor, but still इतने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने के बाद भी जो हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नॉट एबल टू प्रॉपर्ली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखें। और एक मैंने आपसे कहा कि जैसे यहाँ पे हमारे पास है एन टाइप मटेरियल, नाउ हियर इफ यू ऐड द phosphorus impurity this at this say particular this one। तो अब सेकंड है कि अगर आपको इसको पी टाइप बनाना है, तो सपोज इफ आई इंस्टेड एडिंग दिस phosphorus, इफ आई एड द बोरान, बोरान की जो वैलेंस उसमें लास्ट जो शेल होता है उसमें खाली 3 ही इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। सपोज इफ यू टेक द सेम एग्जांपल नाउ हियर, I use the silicon atoms here। अब सपोज इज्यूम करो मैं यहाँ पे बोरॉन एटम ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनको बॉन्ड्स को हम ऐसे भी दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन को दो लाइन से हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दो लाइन, यहाँ पे भी जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आई कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस इन दिस फॉर्म एज वेल। तो यहाँ पे इट्स लाइक दिस वन। अब यहाँ पे भी आपको देखना है इसके साथ। अब यहाँ पे जूम कर लो कि आप इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, 1 2 3। अब यहाँ पे क्या, ये तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ, ठीक है, और ये इसके साथ। अब एक इलेक्ट्रॉन या एक यहाँ पे जो यहाँ पे होने चाहे और एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे तो इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डिफिशिएंसी ऑफ है एक इलेक्ट्रॉन की, वी कॉल दिस डिफिशिएंसी एज एन होल,
ठीक है। अब इन द सेम वे अगर आप ऐसे प्योरेस्ट फॉर्म में जो आप इम्प्योरिटी जो ऐड कर रहे हैं, बोरान एटम इसमें ऐड करो, अब इसमें टेंडेंसी क्या होता है टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर। तो यहाँ पे जैसे वो डोनर कहते हैं, डोनेट्स, इट कैन डोनेट वन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड एक्सेप्टर एटम्स, ठीक है ना। तो अब इस चीज को ध्यान में रखा, तो दिस अगर आप ये ऐड करो तो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि एक्सट्रिंसिक कहते हैं विच इज इन प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, विच इज नॉट इन प्योरेस्ट फॉर्म कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो ये हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, लेकिन पी टाइप है। यहाँ पे भी हमारा जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। ये थोड़ा इसको आपको ध्यान में रखना है, ये जो कंसंट्रेशन के हिसाब से आप क्या इसको लाइटली डोप्ड बनाना चाहे हो, हैवीली डोप्ड बनाना चाहे हो, डिपेंड्स ऑन ऑल दिस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सपोज यहाँ पे है एन टाइप मटेरियल में, अब मैंने सपोज एन ए एन डी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो एन डी इज इक्वल टू 10⁻17 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सपोज आप जो अगर ऐड कर रहा हूँ 10⁻17 मैं ये फॉस्फोरस एटम इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो ये कहते हैं डोनर एटम, तो 10⁻17 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इतने आपके पास ये एटम्स भी उतने होंगे, एट द सेम टाइम उतने इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होंगे और वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़, तो दीज आर कॉल्ड डोनर एटम्स इन एक्सेप्टर, क्योंकि आगे हम टर्म्स को हमें यूज करना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस वन, जो हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन। तो आप यहाँ पे यही देख सकते हो, यहाँ पे जूम करो कि यहाँ पे इट्स हैवली डोप्ड 10⁻17 है यहाँ पे, ठीक है ना। जूम करो यहाँ पे 10⁻15 है, इसकी जो हमने इट्स लाइटली डोप्ड, जैसे 10⁻15 हमने इसमें इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए हुए बोरान के, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर इनमें जो रेशियो है 100:1, ठीक है। 100:1 कैसे आ गया यहाँ पे, तो आई कैन से 10⁻17 बिकॉज दिस साइड इज एन टाइप इज हियर हैवीली डोप्ड, और जो हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है यहाँ पे, और उसके बाद जो पी टाइप इट इज लाइटली डोप्ड, दैट्स 10⁻15, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ दोनों में डिफरेंस 10⁻17 डिवाइड बाई 10⁻15, वहाँ 100 का फर्क आ रहा है। इसका अगर इसके 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका रेशियो जो है इट इज 100:1, इसको ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं एग्जांपल यहीं पे दे रहा हूँ, जूम करो यहाँ पे, हालांकि 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा जैसे डायोड्स में, तो सेम यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रही है, और एक होल यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो होल अब इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो होल की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन विल बी इन द सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, बट कन्वेंशन करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वो भी यहाँ पे, ये दोनों मिला के करंट्स आपको आई करंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक चीज आपको देखना है, जो होल का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है ना, दिस इज लाइट डोप्ड। जूम करो कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन जो 100 आ रहे हैं, यहाँ पे जूम करो, यहाँ पे अवेलेबल होल्स 5 है यहाँ पे, तो वो रिकम्बाइन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दिस 100 इलेक्ट्रॉन्स, 5 तो रिकम्बाइन हो रहे होल्स के साथ। मैं जूम करो 95% यहाँ पे आ रहे हैं, तो 95% ऑफ व्हाट दीज 100 का, ठीक है ना। 95 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब 5 तो यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो अब उसके बाद अब और एक चीज आपको देखना है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे, क्योंकि ये जो जंक्शन है यहाँ पे दिस J2 जंक्शन जो है, इट इज हियर रिवर्स बायस। अब क्यों है रिवर्स बायस, आप यहाँ पे देखोगे द एन टाइप इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना, एंड पी इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे जो जंक्शन है, ये J2 जंक्शन है, यहाँ पे रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में हमें ये भी पता है कि सपोज यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये जो यहाँ पे हमारा जो एक एन टाइप मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसमें हमने इम्प्योरिटी जो ऐड की है, फॉस्फोरस इम्प्योरिटी ऐड की है। अब जो उसको एक इलेक्ट्रॉन है जूम कलो को यहाँ चला गया, तो अब इलेक्ट्रॉन वहां से निकलने के बाद, तो इस जो यहाँ पे डोनर एटम होगा, अब डोनर क्या, ठीक है ना, इट बिकम्स एन पॉजिटिवली चार्ज आयन, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसको फॉस्फोरस, क्योंकि हमें एज न्यूट्रल हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर एटम जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वो होते हैं,
इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ओवरऑल जो चार्ज होता है न्यूट्रल होता है। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ पे फॉस्फोरस में से, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन्स तो बराबर ही है इतना, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई वी कैन से इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज, वन से डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा डिफ्यूजन की यहाँ जा रहे हैं। इन द सेम वे जहाँ पे जब ये यहाँ पे एक्सेप्टर है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है। तो अगर हम देखेंगे अगेन, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर अज्यूम करो ये बोरान एटम है, ठीक है ना, तो इसमें इट एक्सेप्ट्स वन दिस वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम देखेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने आने के बाद उस पर्टिकुलर एटम में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ओवरऑल वी कैन सी इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज आयन। तो यहाँ पे तो इस साइड में वी हैव गॉट नेगेटिव चार्ज विद आयन्स आर हियर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ड्यू टू दिस चार्ज जो यहाँ पे है, सो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इनको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। सपोज अगर यहाँ से रिकम्बाइन हो गई 5 जो 9 डिफाइन अपनी तरह किया, अपनी तरह खींचने के बाद जो ही यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद जो कलेक्टर, तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये इनको अपने तरफ कलेक्ट करता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक attracted to this one and it collects this one. So that's why this terminal is called collector. It collects these electrons. तो ये आने के बाद यहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अब देखो यहाँ पे तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव रहे हैं, हम यहाँ से होने के बाद यहाँ आ रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या, अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई आई सी तो डायरेक्शन इट इज टुवर्ड्स दिस डिवाइस, ठीक है। तो अब इन द सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो और एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है, अब क्योंकि करंट इक्वेशन हमने निकालनी है इसमें, तो कलेक्टर करंट इज इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इट इज टुवर्ड्स दिस डिवाइस, यहाँ पे भी इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस डिवाइस। अब हम देखेंगे यहाँ पे देयर इज वन मोर करंट इज कॉल्ड बेस करंट। बेस करंट क्या है, सपोज यहाँ पे मैंने आपसे कि रिकम्बाइन हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, तो लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए टू कीप बैलेंस्ड दिस नंबर ऑफ होल्स हियर, अब यहाँ पे ये दो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है ना, ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव पोलरिटी ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट द दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल रहे हैं, अगेन 5 होल्स वहाँ पे क्रिएट होंगे। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकलने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इट इज लाइक दिस वन, तो जो यहाँ पे ये करंट है वो कॉल्ड बेस करंट, जिससे बेस टर्मिनल। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स दिस डिवाइस इन द अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इन करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इनसाइड दिस वन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें इन चीज़ों को समझने के बाद हमें वी विल गेट फर्स्ट रिलेशन ऑफ करंट रिलेशन। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन आई सी आई बी एंड आई। वहाँ अब वो पहली करंट इक्वेशन क्या है, इफ वी अप्लाई द की सी एल टू दिस पर्टिकुलर डिवाइस, एज यू नो दैट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब यहाँ पे आपकी आई सी करंट इनकमिंग है, आई बी इज ऑल्सो इनकमिंग एंड दिस वन इज आउटगोइंग, सो यू विल गेट द फर्स्ट करंट रिलेशन। द फर्स्ट करंट रिलेशन इज एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन जो इसमें है, तो ठीक है ना, तो उसके लिए आपको क्या समझना है, यू हैव टू। तो अब मैंने जैसे आपसे कहा कि यहाँ पे जो इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ इसमें जो है कि जो हमारा जो ये डिवाइस है, अब ट्रांजिस्टर जो है हमारा, तो अब यहाँ पे भी मैंने आपसे कहा कि ये जो जंक्शन है यहाँ पे, सो दिस इज एन पी एंड एन, ठीक है। तो ये यहाँ पे यू हैव गॉट नेगेटिव चार्ज आयंस, यहाँ पे सॉरी इट इज पॉजिटिव हियर, इट इज नेगेटिव हियर, because these are acceptors, one is they accept the electron, they get negatively charged यहाँ पे। अब क्योंकि अब यहाँ पे हमने जो पावर इसमें वोल्टेज दी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज इन दिस वे, प्लस एंड माइनस। अब ये जो क्योंकि इट इज एन टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, पी इज कनेक्ट पॉजिटिव टू द नेगेटिव, सो यहाँ पे इट इज अ रिवर्स बायस जंक्शन। ये जो जंक्शन है हमारे रिवर्स बायस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, ये जो एन टाइप मटेरियल है, एज यू नो दैट इन एन टाइप मटेरियल में क्या होता है कि देयर आर आल्सो सम these one minority carriers, so n type में there are large number of electrons, but besides electrons क्यों, क्योंकि जो एक्चुअली हम इसको जब डोप करते हैं स्टिल इसमें जो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है, उस चीज़ को मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जिम करो ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। ड्यू टू टेम्परेचर अगर सपोज एज्यूम करो कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ बॉन्ड्स इसमें ब्रेक हो रहे हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है और होल भी जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब यहाँ कमिंग टू सपोज इज एन टाइप, यहाँ पे अब एन टाइप है, सपोज अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन
बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इट जनरेट्स वन इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी वन होल। एक तो हमने डोपिंग के थ्रू इसमें वी हैव गॉट सो मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिसाइड दिस इलेक्ट्रॉन्स देयर आर सर्टेन बॉन्ड जो होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर वो ब्रेक होते हैं। अब उनका काम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो इलेक्ट्रॉन्स में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स गिने चुने हैं वो दिखेंगे नहीं। अब लेकिन यहाँ पे कुछ होल्स विल बी दिया प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एन टाइप में, ठीक है ना। तो दीज होल्स आर कॉल्ड माइनॉरिटी कैरियर्स, ये बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। इन द सेम वे जो हमारा दूसरा मटेरियल है पी, वहाँ पे भी क्या होंगे, वहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, क्योंकि वहाँ तो एक्सेस ऑफ होल्स होंगे ड्यू टू डोपिंग, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है ना। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे यू हैव गॉट सर्टेन नंबर ऑफ होल्स, यहाँ पे आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी टाइप में, दीज आर माइनॉरिटी कैरियर्स। अब क्या होता है कि लेकिन इन माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए आप देखो कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दे रहे हैं, तो फॉर दीज तो इट एक्ट्स एज अ फॉरवर्ड बायस माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए। अब क्या होगा कि सो इट विल पुश दीज होल्स इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स पुश होंगे इस डायरेक्शन। अब यहाँ पे ड्यू टू दीज माइनॉरिटी कैरियर्स दे विल बी, क्योंकि होल का डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन तो यही होगी लाइक दिस वन। अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ मूव रहे हैं, लेकिन ओवरऑल करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। अब ये दीज टू टोटल, सो दीज कंस्टिट्यूट्स योर आईसी कलेक्टर करंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेकिन अब और एक चीज है यहाँ पे, सो वी कॉल, ये जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वी कॉल इज अ लीकेज करंट, ICBO। दिस लीकेज करंट इज द माइनॉरिटी कैरियर्स। अब ये तो ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्योंकि सपोज आप ये कौन सी करंट है, अब देखो व्हाई इट हैज बीन नेम्ड ICBO, इट इज अ करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। तो क्योंकि ये कलेक्टर टर्मिनल है, यहाँ हमारा बेस टर्मिनल है, बिटवीन दीज टू देयर इज अ करंट व्हेन O इज फॉर ओपन। तो ये आप ये वाला टर्मिनल आप ओपन कर रहे हो, तो जब ये यहाँ से कुछ सोर्स सप्लाई नहीं दे रहे हो अक्रॉस दिस emitter and base, if there is no power supply, DC supply यहाँ पे नहीं दे रहे हो, we are not applying any the voltage source across these two terminals, since we can say this terminal is open and but there still some current will be flowing, that is called a leakage current, ठीक है ना। अब ये लीकेज करंट क्या है कि ये rises to doubles, ये डबल हो रहा है for 10 degree, for each 10 degree centigrade rise in the temperature. If there is a rise in temperature of 10 degree centigrade, so there will be, the current will double. तो इट इज़ वेरी सेंस टू द दिस वन। तो अब सपोज अगर ये तो ये लीकेज करंट है, ठीक है ना, ये तो फ्लो होगा। तो उसके बाद अगर मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ अगेन सेम वोल्टेज सोर्स दे रहा हूँ, तो अब हमें पता है कि यहाँ पे देयर विल बी वन मोर करंट, दैट इज आई, यहाँ पे सपोज अगर ये वी कॉल दिस एज यहाँ पे, सो दिस करंट इज इमिटर करंट। अब यहाँ पे इट इज अल्फा टाइम्स IE, क्योंकि अल्फा टाइम्स है परसेंटेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आ रहे हैं। सपोज अगर यहाँ पे 100% है IE, तो यहाँ पे 5 मिक्स हो रहे हैं तो 95, so अल्फा का वैल्यू क्या होगा 95, सो 95% यहाँ पे। सो इट मीन्स दिस करंट इज 95% ऑफ दिस करंट, क्योंकि कुछ यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं तो यहाँ पे आ रहे हो। सो अब अल्फा का वैल्यू विल नेवर बी मोर देन 1 ना, एक से ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे, देन अल्फा इज इक्वल टू 1। अदरवाइज जब रिकम्बाइन हो रहे तो यहाँ तो कम ही पहुँचे होंगे, लेस देन 100। सो इन अदर टर्म्स वी कैन से अल्फा इज लेस देन 1, ठीक है ना। तो इट कैन बी 95% ऑफ दिस IE, और वी कैन से, ठीक है, इसका रेंज जो है अल्फा रेंज इज फ्रॉम से 0.95 to 99%, ठीक है, 95% टू 99, इट मीन 0.95 टू 0.99% यहाँ पे। सपोज इसका अगर एक ही रिकम्बाइन हो रहा है तो 99 यहाँ पे आ जाएंगे, ये ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू 1 नहीं होगा नेवर, ठीक है ना, इट इज लेस देन 1 ऑलवेज। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब यहाँ, तो अब यहाँ जब ये भी यहाँ पे दोनों सप्लाई में दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको फॉरवर्ड बायस करके रख रहा हूँ, इसको रिवर्स बायस मैंने किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव मोड में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन जो है, तो दिस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस एंड दिस मस्ट बी रिवर्स बायस। अब यहाँ पे जब ये टोटल हम दे रहे हैं दोनों पावर सोर्स, तो देर भी अब दो करंट्स हैं, तो IC अब इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE प्लस दिस लीकेज करंट, क्योंकि ये करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो अभी इन दिस वे यहाँ पे भी होल्स, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर फ्लो हो रहे हैं, दैट इज लीकेज करंट। तो यहाँ पे और एक करंट है, तो ये कुल मिला के दिस इज नाउ IC, क्योंकि IC करंट इज इन दिस डायरेक्शन, सो IC इज द सम ऑफ दीज। तो यहाँ पे और एक इक्वेशन हमें मिल रही है, दैट इज वी कैन राइट हियर IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE प्लस ICBO। व्हाट इज ICBO? इज अ लीकेज करंट, ठीक है ना।
तो यहाँ पे सो दिस गिव्स मी वन मोर करंट रिलेशन, अगेन इंपॉर्टेंट करंट रिलेशन है ये, आके काफी यूज करनी है हमें। दैट इज वी आर राइटिंग हियर IC इज इक्वल अल्फा टाइम्स I प्लस ICBO। तो ICBO इज हियर लीकेज करंट। तो ये में इमिटर करंट निकालिए, कलेक्टर करंट। आई कैन आल्सो फाइंड आउट बेस करंट इन टर्म्स ऑफ दीज टू। उसके लिए आपको क्या करना है, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द IB। So from this IB is equal to IE minus IC, IB is equal to IE minus IC, then you will put the value of IC in this equation, so IB is equal to IE, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, IC को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो IB इज इक्वल टू IE एज इट इज, ठीक है ना। तो माइनस IC, तो IC किसके बराबर है, अल्फा टाइम्स IE प्लस ICBO। तो यू विल जस्ट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे यू कैन फाइंड आउट IB इज इक्वल टू IE इंटू 1 माइनस अल्फा माइनस ICBO। ये हमें यहाँ पे, सो दिस इज बेस करंट। अब इसको वी कैन आल्सो पुट इन दिस अनदर सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो लीकेज करंट है इट इज वेरी लेस, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू दिस IE इंटू 1 माइनस अल्फा। we can ignore this part, so directly you can write IB is equal to IE into 1 minus alpha, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो करंट इक्वेशंस हैं ये आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है ना। तो also we can write here from this equation from 2 since ICBO is very less than this one, we can directly write, I can ignore, so I can write IC is equal to alpha times IE, or alpha is equal to IC upon IE। IC जो है एक्चुअली इट इज आउटपुट करंट, क्योंकि आउटपुट साइड टर्मिनल में आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड IE क्या है, हमारी इनपुट की सीधा रेशियो ऑफ दिस करंट, इट इज कॉल्ड करंट गेन। अल्फा इज नथिंग, इट्स अ करंट गेन in which configuration, in common base configuration, and its value is always less than 1 and it varies, alpha varies from, जैसे मैंने भी कहा, जो अल्फा वेरी हो रहा है from 0.95 to 0.99, 0.99, ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज लेस देन 1, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये तो इट इज, दीज आर अबाउट दिस current relations. So there are now three current relations. One is that IC is equal to IC plus IB, and another one again important one. Then you can also find out in terms of IB, and or you can also simplify this one directly. You can find out the current amplification factor in case of a common base configuration. So it is alpha, याद रखना, काफी यूज करना है, it is IC by IE, but alpha is always less than 1. तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, सो यहाँ पे देयर इज़ नो करंट गेन, बिकॉज इसमें देखोगे आउटपुट करंट इज ऑलवेज लेस देन एमिटर करंट, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये तो मैंने आपसे कहा कि हर एक कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या करना है, एक तो आपको पहले इसके सर्किट के बारे में बताना है, उसके बाद करंट रिलेशंस है, और उस थर्ड पार्ट जो है हर एक कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज करेक्ट्स ऑफ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हर एक ट्रांजिस्टर जो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है इनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वन इज इनपुट कैरेक्टर्स एंड अनदर इज आउटपुट कैरेक्टर्स। अभी जो कैरेक्टर्स का काम क्या है, सो दिस इज सिंपली टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ ए ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। क्योंकि यूजुअली हमें फिर सर्किट्स में जब इनको यूज़ करना है, हमें पता होना चाहिए कि हाउ द पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर बिहेव्स व्हेन इट इज़ यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सर्किट एंड इन अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कैसे है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू प्लॉट द because certain currents are and voltages are related associated with each configuration, then we should know the relation between graphical relationship between these two currents and different voltages, ठीक है ना। और ये जो ग्राफिकल रिलेशनशिप जो उनकी है उन्हीं को हम कहते हैं ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब क्योंकि मैंने आपको बताया जो सर्किट है, यहाँ पे दो सर्किट्स हैं, एक तो इनपुट सर्किट है, दैट अनदर इज आउटपुट सर्किट। तो अब इन दिस ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो आप इनपुट साइड में फाइंड आउट करते हो, देन अनदर इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट करंट, सो हियर इज इनपुट करंट इज I and input voltage, that is VBE. So the relation, the graphic relationship between IE and VBE for different levels of this uh, output voltage, that is VCB, we call this as a इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज द ग्राफिक रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट करंट आई एंड द इनपुट वोल्टेज VB फॉर वेरियस लेवल्स ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, ये जो VCB। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हम यहाँ पे ग्राफ है, ग्राफ तो खाली
जैसे में क्या है कि इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वीसीबी, अगर वीसीबी वैरी करोगे इट मे आल्सो इफेक्ट आवर दिस वन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे दैट इज व्हाई वी हैव टू कीप दिस कांस्टेंट। अगर मैं 5 या आई विल गेट सम ग्राफ करो, उसके बाद अगर इसमें चेंज कर रहा हूँ तो देयर विल बी डिफरेंट करो, ठीक है ना, तो इट मे वेरी। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इनपुट कैरेक्टर्स। तो सबसे मैंने किया एक्सप्लेन आपको इनपुट कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें कि अब आई एम गोइंग टू प्लॉट दिस वन। तो अब मैंने क्या कि जो सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांजिस्टर को, अब इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई एम यूजिंग 2 डायोड्स हियर, क्योंकि आप देखो ये डायोड का ये साइड एन साइड है, ये हो गया पी साइड, दूसरा डायोड है इसका ये पी साइड है, यहाँ पे एन साइड है। अगर पी और पी मिल जाएंगे ये आपकी बेस बन जाएगी ट्रांजिस्टर की, और यहाँ पे एन है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे अगेन एन है, सो दैट इट बिकम्स एन पी एन, ठीक है ना। जो ट्रांजिस्टर को मैं ऐसे रिप्लेस कर रहा हूँ तो टू मेक द थिंग्स इजी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो कि जब मैं इसको, बाकी तो सेम है, जो हम इन वोल्टेजेस दो दे रहे हैं, इसको फॉरवर्ड बायस, इसको मैं फॉरवर्ड बायस रख रहा हूँ, ठीक है ना, इसको रिवर्स बायस। आप देखो ये डायोड रिवर्स बायस में ये, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल वो एन के साथ है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से पॉजिटिव के साथ, सो दिस इज इन फॉरवर्ड बायस दिस डायोड। अगर दूसरे डायोड की बात है, अगर आप देखें ये डायोड किसमें है, तो यहाँ पे देखोगे डायोड ये वाला जो एज पर दिस वन, तो यहाँ पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, तो इट इज रिवर्स बायस, ये डायोड रिवर्स बायस में है, ठीक है ना। अपन देखेंगे पहले इनपुट करेक्ट। अब इनपुट करेक्ट अब आप देखोगे इट इज नथिंग इज द ग्राफ ऑफ ए डायोड जो आप प्लॉट कर चुके हो, ठीक है ना। तो उसकी जो हमारा जो डायोड है, उसकी जो डायोड करंट इक्वेशन जो है तो आपने पढ़ी होगी। सो दैट इज वहाँ पे हम लिखते हैं आई डी, दैट इज डायोड करंट इज इक्वल टू आई एस। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे यहाँ पे इमीटर है, क्योंकि यहाँ जो करंट है दिस माई इमीटर करंट। वहाँ पे अगर खाली डायोड होता वहाँ पे लिखते हैं आई डी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई वी डी, यहाँ पे लिखते थे दैट इज डायोड वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। देन क्योंकि यहाँ पे जो हमें अक्रॉस द डायोड जो वोल्टेज है दैट इज वी बी, तो यहाँ पे इसलिए वी बी है। देन यू गॉट द जो करंट डायोड करंट है, यहाँ पे डायोड में से करंट निकले दैट इज आई करंट, तो यहाँ पे लिख रहे हो आई, तो दिस ठीक है ना, आई इज इक्वल टू आई एस ई रेज पावर। ये करंट इक्वेशन है डायोड में, जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे, सो वी डिराइव इक्वेशन फॉर डायोड करंट इक्वेशन। तो ये हमारी डायोड करंट, सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। अब वोल्टेज कौन सी है, इट इज वी बी, द वोल्टेज यू आर अप्लाइंग अक्रॉस द डायोड, एंड करंट कौन सी है, आई। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस, बट दिस रिलेशन इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, जब हम डिराइव, तो इट इज एक्सपोनेंट, दैट इज व्हाई जब हम 0.7 तो ब्रेक जो उसमें बिल्ट इन वोल्टेज होती है डायोड में, जैसे 0.7 इनके सब सिलिकॉन, ठीक है ना, उसके बाद इट क्रॉसेस दिस 0.7, ठीक है ना, कट इन वोल्टेज क्रॉस करने के बाद देयर इज अ रैपिड राइज इन दिस वन करंट, ठीक है ना। तो सब अगर इमीटर करंट डायोड करंट जो होती है रैपिडली इंक्रीज होती है। अब मैं यहाँ पे 2 केसेस ले रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग दैट पहले मैं वीसीबी में कांस्टेंट रख रहा हूँ से 5 वोल्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। देन आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन दीज टू, आई एम वेरिंग दिस वन, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे भी है, अगर सपोज आप यहाँ पे वी बी सपोज पहले 0 है, आप कुछ भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे इट इज 0, अगर ये वी बी 0 है तो यहाँ पे ये पूरी जो पावर है ये 0 के बराबर है, ई पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 इंटू n इज 0, तो आई इज ऑल्सो 0, तो भी आई आपका 0 है। फिर आप धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे जब हम वी बी का पॉइंट इसमें 0.001 वैल्यू डालते हैं, एट द टाइम यू विल गेट सम आई, बट इट विल वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल करंट होगी। तो यहाँ पे 0.7 के बाद क्या होता है कि वहाँ पे इट स्टार्ट्स अब्रप्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि अब्रप्टली इंक्रीज धीरे धीरे, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंक्रीज हो रही है करंट, ठीक है ना। तो अब ये इट इंक्रीज इन दिस वे, तो यहाँ पे ये रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये इसको समझने के लिए, सो दिस इज व्हाई हाउ वी गेट दिस कर्व हियर, सो देयर इज अ राइज इन द एक्सपोनेंशियल राइज इन दिस पर्टिकुलर कर्व हियर, दिस वन। तो अब यहाँ पे समझाने की बात ये है कि ये तो हमने सपोज प्लॉट किया फॉर आई एम कीपिंग, अब यहाँ पे एक चीज को जरूरी समझना है कि अगर मैं VCB को अब चेंज कर रहा हूँ, अब इंक्रीज फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट, हाउ दिस इज गोइंग टू बिहेव, ठीक है, क्या उस ग्राफ में क्या होगा, ठीक है। उस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना है, हमें एक अर्ली इफेक्ट है, ठीक है ना, ये जेम्स अर्ली थे, ठीक है ना। तो उन्होंने हमें ये वो डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट एंड इज कॉल्ड अर्ली इफेक्ट। तो अब अर्ली इफेक्ट को समझने के लिए आपको क्या करना है कि, तो यहाँ पे ये डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हाँ, अर्ली इफेक्ट इज बेसिकली द, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सपोज आप देखो ये रिवर्स बायस हम जब इंक्रीज कर रहे हैं तो होगा, हाउ इट्स गोइंग टू इफेक्ट, उसको समझने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम से एन टाइप एंड इज पी टाइप, तो दिस इज डिप्लीशन लेयर हियर, एज्यूम करो ये हमारा डिप्लीशन लेयर है, पहले ये था, ये जो यहाँ पे है, उसके बाद मैंने क्या किया, सपोज जब आपका 5 वोल्ट था तब डिप्लीशन ये इतना ही था, उसके बाद मैंने क्या किया, आई चेंज फ्रॉम रिवर्स बायस में 5 से 10 कर रहा हूँ, 10 वोल्ट इंक्रीज किया, तो उससे क्या होगा कि सिंस इट इज लाइटली डोप्ड, अब ये डिप्लीशन लेयर इट विल पेनिट्रेट मोर टू टुवर्ड्स दिस वन, क्योंकि हमें पता है कि डायोड जब आप पढ़ चुके
चूंकि रिवर्स बायस बढ़ाने के बाद डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या बढ़ जाती है। तो ये जो बेस है, बेस में डिप्लीशन लेयर की पहले ये थी, अब यहाँ पे आ गया। अब उससे क्या होगा, जो यहाँ पे, अब मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे इस चीज़ को समझाने के लिए। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सिंपल यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लेट मी एक्सप्लेन दिस वन हियर। अब देखो यहाँ पे अर्ली इफेक्ट को समझाने के लिए अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ से। ये हमारी बेस है यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज़ नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे है। ये पहले नेगेटिव चार्ज यूज कर लो। जब हम यहाँ पे वोल्टेज यूज करें 5 वोल्ट दे रहे थे, ठीक है। रिवर्स बायस था, वो था कितना 5 ECB 5 वोल्ट। अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो 10 वोल्ट। अब जो मैं रिवर्स बायस बढ़ाता हूँ इसमें, तो क्या होगा कि जो डिप्लीशन लेयर जो है उसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी, लाइक दिस वन। ये तो एक्चुअली दोनों साइड बढ़ जाएगी, लेकिन वह कंसर्न विद दिस पोर्शन जो यहाँ पे, अब पहले यहाँ तक था, अब यहाँ पे। अब उससे क्या होगा, अब यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि जो डिफ्यूजन जब होता है, बिकॉज एन टाइप मटेरियल है, पी टाइप है, डिफ्यूजन होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, फिर यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब 2 केसेस यहाँ पे हो रहे हैं। एक तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन सपोज पहले, अब रिकम्बिनेशन जो है यहाँ पे, क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है ना, जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द होल्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ होल्स हैं यहाँ पे माइनर, ठीक है ना। तो पी टाइप मटेरियल में देयर आर होल्स हियर, तो वहाँ पे क्या होता है कि तो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो इससे पहले सपोज अगर 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे थे 5 होल्स के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे जगह कम है, ठीक है ना, तो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन अब लेस है यहाँ पे। तो अब उससे क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इट विल सपोज अगर इलेक्ट्रॉन्स, तो अल्फा का वैल्यू इंक्रीज होगा। सपोज अगर अल्फा पहले सपोज 95% था, मतलब 100 में से 95 यहाँ पे आ रहे थे, अब रिकम्बाइन चांसेस ऑफ रिकम्बाइन कम, अब 95 से ज़्यादा यहाँ पे, मे बी अल्फा में भी 98, क्योंकि अब क्योंकि चांसेस कम है, पहले 5 हो रहे थे, ठीक है। सपोज अब यहाँ पे 2 ही क्या है कि रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो बाकी जो 98 है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। इसमें 2 आपको याद रखना है कि वंस वी इंक्रीज दिस VCB रिवर्स बाय जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हाउ इट गोइंग टू इफेक्ट इट इंक्रीज अल्फा, जो अल्फा है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा। एक तो ये है। अब दूसरा जो है अगेन इम्पॉर्टेंट जो है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, ठीक है ना। तो सपोज एज्यूम करो पहले यहाँ पे था, जब मैंने 5 वोल्ट रखा था यहाँ पे, हमारा जो यहाँ तक था, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे, तो एज्यूम करो ये यहाँ पे x है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, डिफ्यूजन में। तो अब क्या होगा, पहले इन दिस केस, अब यहाँ पे अगर मैं ये फर्स्ट केस तो ये है, जो मतलब इस लेवल पे अब 0 था यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे यहाँ पे ये डिफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब उसकी लाइन जो यहाँ पे, देयर विल बी चेंज इन द dN/dx आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। change in the concentration of this electrons once they move in this direction, x डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो एज्यूम करो कि वहाँ पे इज dN/dx। अब उसके बाद क्या होगा, जिसकी स्लोप जो है, आप सपोज क्योंकि अब यहाँ पे ये स्पेस कम हो गई है, जब डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे अब अगर मैं फिर से यहाँ पे देखूँ इसकी स्लोप, ना इट इज लाइक दिस वन। स्लोप इंक्रीज होने से अब इसमें क्या होगा, तो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज होगा यहाँ पे। तो रेट, अब जिस रेट से अब इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उससे क्या होगा, इट इंक्रीजेस अवर दिस वन करंट, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, इमिटर करंट जो है IE जो है वो इंक्रीज होगी अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारी जो टोटल करंट है, इमिटर करंट है, ये 2 पे है डिपेंड है, ठीक है। में एक तो डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हमारी है यहाँ पे जो डिफ्यूजन करंट है वो इंक्रीज हो रही है एज पर दिस वन, ठीक है ना। वी नो दैट दिस इज करंट डेंसिटी विच इज गिवन बाय dN/dx, ठीक है ना, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर ये इंक्रीज हो गया, इट कम आपका करंट जो है डिफ्यूजन करंट इंक्रीज हो रही है। तो जो टोटल इमिटर करंट है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्रिफ्ट करंट है, डिफ्यूजन करंट इंक्रीज होने से तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इमिटर करंट है वो इंक्रीज हो रही है। अब ये जो है दिस इफेक्ट वी कॉल इज अर्ली इफेक्ट। अब इससे क्या, अब देखो क्या, अगर IE इंक्रीज होगा, तो ये जो हम यहाँ पे
ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, पहली वाली करो। अब यहाँ पे यही दिखा रहे हैं, सपोज एज्यूम करो ये पहला 5 जब वोल्ट थी, उसके बाद जब 10 वोल्ट है। इफ आई टेक ना सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे एज्यूम करो कि इन दिस फर्स्ट केस सपोज वी बी यहाँ पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम वी सी बी यहाँ पे 5 वोल्ट ले रहे थे फॉर दिस करो, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सपोज जब वी बी कुछ होगा वैल्यू, तो ये आपको सो यू आर गेटिंग आई ये करंट, सपोज ये हमारी सपोज 10 मिली एम्पियर्स हैं ये करंट, ठीक है ना, एज्यूम कर लो। लेकिन एट द सेम दिस वन अगर हम 10 वोल्ट इंक्रीज कराऊँ, तो अब उसकी जो करंट है यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर करो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लाइन पे जो वी बी सपोज 0.8 वोल्ट या कुछ है यहाँ पे 0.8 वोल्ट पे, अब यहाँ तो यहाँ इतनी करंट मिल रही है जब आपका वी सी बी इतना है, जब वी बी इतना ही से 0.8 वोल्ट ही है, लेकिन यहाँ पे अगर जब आप वी सी बी इंक्रीज करो, अब जो करंट है आई करंट वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो अब इससे हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर वैन वी सी बी इज 5 वोल्ट, मानो वी बी आपका 8 वोल्ट है 0.8 वोल्ट, उस समय आपकी जो ये करंट है आई यहाँ से इट स्ट्राइक्स एट दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दो, ये आपकी आई है, सपोज ये 10 मिली एम्पियर्स है। लेकिन फॉर द सेम 0.8 वोल्ट अगर आप देखोगे इस कर्व के लिए, बिकॉज ठीक है, तो यहाँ पे आपकी करंट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे दिख रहा है आई इंक्रीज, जो हमने अर्ली इफेक्ट पढ़ा, तो दैट इज वाई दिस एट 10 वोल्ट इट इज गोइंग शिफ्ट यहाँ पे। अगर आप फिर से 20 करो तो और देयर विल बी अगेन शिफ्ट ऑफ दिस करो इन दिस लेफ्ट साइड, डिक्रीज करोगे राइट साइड, ठीक है ना, तो इंक्रीज, तो क्योंकि यहाँ 5 वोल्ट वी सी बी है, 10 वोल्ट इंक्रीज करो, तो दिस इज द चेंज हाउ इट इज वी सी बी इज गोइंग टू इफेक्ट आवर द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमने इसमें जो एक्सप्लेन करा है दैट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो इसका है, देन इतना ही इसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करें, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन अब किसके बिटवीन अब आउटपुट करंट जो है एंड आउटपुट वोल्टेज। अब इस सर्किट में आउटपुट करंट है आई सी, यहाँ पे देखो आउटपुट करंट इज आईसी एंड आउटपुट वोल्टेज वीसीबी अक्रॉस दिस वन, तो ये आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट है, तो इनकी जो आपस में रिलेशन है वी कॉल दैट एज अ ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि हम यही लिख रहे हैं कि it's a relationship between the output current IC and the output voltage for various levels of the input current। लेकिन आप इसमें क्या कि इनपुट करंट जो है IE हमारी जो इनपुट करंट है इसमें उसको आपको कांस्टेंट रखना है, जैसे पहले वाले केस में VCB को कांस्टेंट, अब यहाँ पे IE जो है यहाँ पे उसको कांस्टेंट रखना है, अदरवाइज इट में चेंज दिस वन। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे दिखाते हैं ग्राफिकल, ठीक है ना। अब ये जो ये हमारा सो दिस इज द ग्राफ हाउ वी गेट द ग्राफ। अब ये हमें ऐसा क्यों मिल रहा है यहाँ पे ग्राफ, और इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो मैंने सो वी एज वी हैव डन जस्ट नाउ देयर आर करंट रिलेशन एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर सर्किट के लिए कॉमन जो बेस कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे हमने देखा आई सी कॉल्ड अल्फा टाइम्स आई प्लस आई सी बी हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये अब इस इन दिस केस सपोज अब एज्यूम करो कि इसमें हम क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्योंकि वी नो दैट आई सी बी इज वेरी वेरी लेस देन, लीकेज करंट बहुत कम होती है वहाँ, ठीक है ना, नेग्लिजिबल एज कम्पेयर्ड टू दिस वन, सो आई कैन राइट आई सी बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, सो आई गेट आई सी इक्वल अल्फा टाइम्स आई, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू एज यू नो दैट इट इज 0.95 टू 0.99 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 के बराबर है। तो अगर अल्फा को मैं 1 लेके चल रहा हूँ इट मींस माय आई सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ई, ठीक है, जो हम मेरी यहाँ पे आई सी है किसके बराबर है, इमिटर का, तो कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इमिटर करंट, लेकिन किस कॉन्फ़िगरेशन में है, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन कॉमन दिस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहीं पे हम आप यहाँ पे अगर आप देखोगे इस ग्राफ में, और सेकंड है कि अगर आप सपोज यहाँ पे और एक चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना, दूसरा ये पॉइंट है इसमें सपोज अगर आपकी आई ई 0 है, इमिटर करंट आप 0 रख रहे हो, तो आई सी का वैल्यू तो ये 0 आ जाएगा, आई सी का वैल्यू क्या है, आई सी बी ओ, आई सी दैट मीन्स लीकेज करंट। तो अब यहाँ पे हम इसी चीज़ को दिखा रहे हैं, तो एक तो है ये हमारा आई सी अलॉन्ग दिस वाई एक्सिस है कलेक्टर करंट, ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पे इट इज़ ए वी सी बी आउटपुट वोल्टेज ग्राफ बिटवीन दीज टू। अब यहाँ पे क्योंकि आई सपोज अगर मैं आई को 0 रख रहा हूँ, तो उसके बाद जो यहाँ पे तो वो करंट तो 0 नहीं होगा एक्चुअली, अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली देखेंगे हम इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 के बराबर, लेकिन हमें दिखाना इट इज़ इक्वल टू ये जो यहाँ पे जो हम दिखा रहा हूँ कि ये जो करंट है यहाँ पे, सो देयर विल बी स्मॉल करंट दैट इज लीकेज करंट आई सी बी ओ, दिस आवर लीकेज करंट दैट इज थोड़ा horizontal line से थोड़ा ऊपर है, even I is equal to 0 there is certain some current flowing but that current is very small and we call this current as a leakage current, ये हमारी लीकेज करंट है when I is equal to 0। बाकी हम दिखा रहे हैं कि सपोज I 0 है ऑलमोस्ट, ये ICB नेग्लिजिबल है, 0 के बराबर ही है लगभग, क्योंकि ICB बहुत
उसके बाद आप क्या करोगे, मैंने भी यहाँ आपको क्या है, इन दिस केस क्या हमारा हमारा जो आई ई सी है, इट इज अप्रोक्सीमेटली आई। सपोज अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई को यहाँ पे सेकंड केस है, आई को मैं रख रहा हूँ 5 मिली एम्पियर्स। हमने पता है कि आई सी बी विल बी ऑल्सो 5 मिली एम्पियर्स। उसके बाद में इसको आई को 10 मिली एम्पियर्स की इस पे इट इज अगेन इक्वल टू द सेम। तो ठीक है ना, तो यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो ये तो उसके बाद अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो अब इसमें वी आर डिवाइडिंग दिस ग्राफ इनटू 3 रीजन, ठीक है ना। एक होता है एक्टिव रीजन, दूसरा होता है कट ऑफ रीजन, एंड थर्ड जो होता है कि सैचुरेशन रीजन। तो एक्टिव रीजन हमें पता है कि एक्टिव रीजन में क्या है कि उसमें दोनों जो जंक्शन हैं वो होते हैं, पहला जंक्शन जो होता है इनपुट जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस होता है, तो आउटपुट जंक्शन है दूसरा जंक्शन वो क्या होता है कि रिवर्स बायस में, ठीक है ना, दैट इज इन रिवर्स बायस। तो वी गेट दिस ग्राफ लाइक दिस वन एक्टिव रीजन में। कट ऑफ रीजन है कि जो बिलो दिस आई इज कॉल्ड जीरो, इसके नीचे जो रीजन है हमारा, तो वही कॉल दिस कट ऑफ रीजन। अब कट ऑफ रीजन क्या है, सो अगर आपने आई ई से इसको कम कर दिया, मतलब आई इज कॉल्ड जीरो, जीरो से कम मतलब क्या है कि, तो आई का जो जीरो से कम मीन के आई की पोलरिटी चेंज हो गई, इट विल बी माइनस आई। तो माइनस आई की अब क्या होगा कि ये जो अगर मैं कहूँ कि माइनस तो अब यहाँ पे देखोगे अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम आई ई ये जो आई है, ठीक है ना, तो अब कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आई ई इज इसकी डायरेक्शन कब चेंज होगी, आई व्हेन इट विल बी लेस देन जीरो, अगर हम यहाँ पे इसकी पोलरिटी चेंज करेंगे, अगर हम इसे नेगेटिव बनाए, अब इसको पॉजिटिव एंड देन दिस इज नेगेटिव, ओनली देन द करंट विल चेंज, डायरेक्शन करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो तभी तो करंट की नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करें, लेकिन अगर मैंने तो रिवर्स बायस, ये भी ऑलरेडी रिवर्स बायस है, अगर दोनों रिवर्स बायस में कट ऑफ में, तो हमारा ट्रांजिस्टर किस में होगा, देन इट विल बी कट ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए हम कह रहे हैं कि आवर करंट इज लेस देन आई, देन दैट विल बी, इट विल बी इन नेगेटिव, सो इट मींस दैट आवर बोथ जंक्शंस विल रिवर्स बाय, अगर दोनों रिवर्स में, वो कॉल दिस कट ऑफ, ठीक है ना। हमारा ट्रांजिस्टर किस है, कट ऑफ में, और वी कॉल द रीजन एज अ कट ऑफ रीजन। एक्टिव रीजन आ गए, उसमें एक पहला वाला इनपुट जो जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, दूसरा रिवर्स बायस है, ठीक है। तो एक्टिव मोड में जब हमें ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है, तो हमें इसको एक्टिव मोड में ही रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा आई इज अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, आई सी के बराबर होता है। तो अब तीसरा रीजन जो है इसमें, वी कॉल दिस इज सैचुरेशन रीजन। अब सैचुरेशन रीजन आप यहाँ से भी देख सकते हो, तो यहाँ तक तो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वी सी बी इज जीरो, पॉजिटिव वैल्यू। अगर जीरो से लेस किया हमने, इट मीन ये जो वी सी बी है ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव मीन ये जो वी सी बी वोल्टेज जो है इसकी पोलरिटी क्या होगी, रिवर्स होगी। अब उससे आप देखोगे यहाँ पे, इस डायग्राम में देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको लेस देन जीरो, जीरो मीनस ये नेगेटिव, नेगेटिव मीनस कि आई हैव टू चेंज द पोलरिटी ऑफ दिस। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव, मुझे रिवर्स करना है। अगर मैंने रिवर्स किया है, तो क्योंकि अगर मैं ये पॉजिटिव रख रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव, सो दिस जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। लेकिन अगर मैं पोलरिटी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, बैटरी को रिवर्स जोड़ रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, तो फिर नेगेटिव ऊपर आ जाएगा, तो देन दिस जंक्शन विल बी आल्सो इन फॉरवर्ड बायस। तो अगर दोनों जंक्शन, ये भी ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस में ही, तो दिस विल बी अगेन इन द फॉरवर्ड बायस। अगर ये दोनों फॉरवर्ड में आ गए, तो देन वी कॉल इट सैचुरेशन। सैचुरेशन में क्या होगा, तो देन विल बी द अब देखो करंट की डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने रिवर्स, करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहीं पे हम यहाँ पे देखें, एंड देयर विल बी एब्रप्ट राइज इन, क्योंकि इट विल एक्ट लाइक अ डायोड, जैसे डायोड हमने भी पढ़ा, देयर विल बी राइज इन दिस वन करंट, ठीक है, आईसी करंट। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे आप देखोगे ग्राफ में, यहाँ पे उस चीज़ को हम यहाँ पे दिखाते हैं, एक्सपोनेंशियल राइज इन दिस वन, ठीक है ना, रिवर्स, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन है रिवर्स है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बता दिया रिवर्स, ये दिखा रहे हैं कि रिवर्स डायरेक्शन होगी द करंट, ठीक है। तो ये इसमें ये तीन हो गए रीजन, ठीक है ना। तो कट ऑफ रीजन भी आ गया, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है, तो हमने यहाँ पे थ्योरी में आई हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स हियर, यू कैन चेक इट, सैचुरेशन रीजन, फिर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन दी, ये किया है, यहाँ पर कट ऑफ रीजन हम यहीं पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सैचुरेशन रीजन जो है वो हम यहाँ पे थ्योरेटिकली, मैंने सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, व्हाटएवर आई एक्सप्लेन्ड इट जस्ट नाउ। सो दिस और एक चीज़ जो जो यहाँ पे आपको, क्योंकि आगे हमने यूज़ करना है, तो देयर आर आल्सो सम इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट साइड है वहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो वो हम ग्राफ से ही प्लॉट कर सकते हैं। सपोज दैट डायनेमिक रेजिस्टेंस इज नथिंग आल्सो कॉल्ड एसी रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं, दैट इज चेंज इन द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट। तो मैंने भी कहा, इफ आई चेंज द वीबी को मैं चेंज कर रहा हूँ इनपुट करेक्ट्स में, तो देयर विल बी चेंज इन द आई एज वेल, ठीक है ना। तो सपोज अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, सपोज ये स्मॉल, अब यहाँ पे और एक चीज देखो, देयर इज स्मॉल चेंज, सपोज 0.7 टू 0.75 में वोल्टेज वीबी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अब जब 0.7 है यहाँ पे, तो आपकी करंट आई ई ये है, ठीक है। सपोज दिस इज आई, तो आई ई वन,
तो उसके बाद जब मैं पॉइंट थोड़ा इसको बढ़ा रहा हूँ बी को, जस्ट चेंज स्लाइटली में चेंज करा, आप देखो यहाँ इज एक्सपोनेंशियल राइज है, तो करंट जो है ये यहाँ से यहाँ आ रही है। तो अगर यहाँ पे 1 मिली एम्पियर्स है, इट रीचेस से यहाँ पे 20 मिली एम्पियर्स है, इट इज देयर अ स्मॉल चेंज इन वीबी, देयर इज अ लार्ज चेंज इन द करंट। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखो। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, आई कैन राइट इनपुट रेजिस्टेंस जो है, सो आई कैन राइट नाउ हियर इनपुट रेजिस्टेंस जो है, इट इज चेंज इन द वीबी because the resistance is always voltage divided by the current, change in the voltage divided by change in the current। लेकिन अब यहाँ पे there is a small change in this, थोड़ी change है, लेकिन there is large change in this one। ये वैल्यू बहुत बड़ा है as compared to this change in this, ठीक है ना, ये वोल्टेज है। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो क्या है कि इट इज वेरी लार्ज, तो इनपुट रेजिस्टेंस इज सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल, क्योंकि ये जो वैल्यू छोटा है ये बड़ा है, ये डिवाइड मैं कर रहा हूँ इसको इसके साथ, तो इसका स्मॉल वैल्यू, तो इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, क्योंकि ये जो जंक्शन है फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सो दिस कॉल्ड डायनेमिक दिस रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ दिस वन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। देन दूसरा है कि आउटपुट रेजिस्टेंस, अगर हम इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस देखें, क्योंकि वी कैन आल्सो फाइंड आउट हियर, सपोज आप पर्टिकुलर एक करो लो यहाँ पे, तो अगर आप देखो कि यहाँ पे सपोज अगर मैं वोल्टेज यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो करंट जो है, करंट तो सपोज यहाँ पे 5 मिली एम्पियर, तो इट इज रिमेन्स में, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ से from 1 volt to 2 volt to 3 volt, because it's a horizontal, क्योंकि जो ग्राफ में मिल रहा है इट्स अप्रोक्सीमेटली I is equal to IC, जो मैंने भी आपको बता दिया, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, सो देयर इज नो जीरो चेंज इन दिस वन। अगर मैं यहाँ पे भी लूँ, तो एज्यूम करो कि यहाँ पे मैं इसका ग्राफ ये ले रहा हूँ, आउटपुट रेजिस्टेंस चेंज इन द वोल्टेज, चेंज इन करंट। अब देयर इज सर्टेन चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट है, लेकिन करंट क्या है, करंट कोई चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ नहीं, करंट रिमेन सेम 5 मिले, तो इट इज चेंज हियर इज जीरो। तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो दैट्स इनफिनिट, सो इट हैज गॉट अ लार्ज आउटपुट रेजिस्टेंस, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस है इस सर्किट की, इट इज वेरी हाई, इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लो, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो दिस कंप्लीट इज दिस टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अनदर कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।